ضلع میں گرینیڈ حملہ کر کے ایک SOG جوان کو زخمی کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ضلع پولیس لائنز کے گیٹ کے روبرو موجود ایک نجی عمارت میں پیش آیا۔ واقعے کے وقت 2 جوان ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ زخمی جوان کو ضلع اسپتال ڈوڈا منتقل کیا گیا۔ اس کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ حملے کے بعد پولیس، فوج، CRPF اور SOG نے محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر کے حملہ آور ملیٹنٹوں کی تلاش شروع کر دی۔ یہ حملہ شام 4:30 بجے کے قریب پیش آیا۔ یہ سبھی سائڈ سے اوپن ہے، تو بیک سائڈ سے آ کے کسی نے یہ گرنیڈ لاک کیا ہے، گرنیڈ بلاسٹ ہوا ہے۔ اس میں ہمارا ایک سلیکشن گریڈ ظہور احمد، اس کو مائنر انجوریز آئی ہیں۔ باقی اس مسئلے میں جو باقی تفتیش ہے وہ چل رہی ہے، اور موقع سے گرنیڈ کا لیور بھی ملا ہے۔ سر ڈوڈا تو ملیٹنٹ سے فری ہے، یہاں پہ کوئی ایکٹیو ملیٹنٹ نہیں ہے، بٹ کوئی OGW وغیرہ ایسی کوئی واردات کر سکتے ہیں۔ ایسے تو ایکٹیویٹیز تو کوئی ایسی دکھ نہیں رہی تھی، کافی دیر سے بڑا شانت تھا، بٹ اب ہوا ہے تو ہم اس پہ کارروائی کریں گے۔ نہیں ابھی تک ویسا تو پکڑے تو نہیں گئے، بٹ ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر، تو ہم امید ہے کہ ہم جلدی ان تک پہنچیں گے۔ گوپکار الائنس نے کل جماعتی میٹنگ کے بعد مرکزی حکومت کی طرف سے اعتماد سازی کی کوئی بھی کوشش نہ ہونے پر مایوسی ظاہر کی ہے۔ اپنے بیان میں اتحاد نے کہا کہ ریاست کا درجہ بحال کرنے کے بعد ہی جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن کرائے جانے چاہیے۔ دیکھیے ایک رپورٹ۔ پیپلز الائنس فار گوپکار ڈکلریشن نے وزیر اعظم مودی کی سربراہی میں ہوئی آل پارٹی میٹنگ کے نتیجوں پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ گوپکار الائنس نے اعتماد سازی کے لیے حکومت کی طرف سے ٹھوس اقدامات نہ کیے جانے پر خصوصی طور پر ناراضگی ظاہر کی۔ الائنس کے ایک بیان کے مطابق اتحاد کی طرف سے کی جا رہی توقع کے برعکس جیلوں سے سیاسی و دیگر قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا ہے۔ گوپکار الائنس کے مطابق سال 2019 سے جموں کشمیر کا گلا گھونٹ دینے والے دھوس اور دباؤ ڈالنے کے ماحول کو ختم کرنے کے اقدامات بھی نہیں ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر کے مسئلے سے راست طور متاثر رہنے والے عوام سے رابطے کی کوشش نہ ہونے پر اور عوام کی مشکلات کا مداوا نہ کرنے پر بھی گوپکار الائنس نے ناراضگی ظاہر کی ہے۔ امید تھی تھوڑی سی، وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ کادوبند، ہراسان کرنا، جہاں تک بنیادی شہری حقوق ہیں ان کو پائمال کر لینا، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ، اور سینکڑوں لوگ اب بھی ہے مختلف جیلوں میں، جموں کشمیر کی جیلوں میں اور باہر کی جیلوں میں۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے جس کو بدلنا ہوگا، اور ہماری مانگ ہے کہ سرکار کو چاہیے کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لے، قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنائے، اور جو یہ ہراسان کرنے کی، پکڑ دھکڑ کی مہم کو روکا جائے۔ کوئی ایسا میسج ملا نہیں جموں کشمیر کے لوگوں کو جس میں اعتماد سازی کی طرف قدم بڑھایا جاتا۔ گوپکار الائنس کا کہنا ہے کہ جہاں تک ریاست کے درجے کی بحالی کا سوال ہے تو BJP نے پارلیمنٹ کے اندر وعدہ کیا تھا، انہیں اپنے عہد کا احترام کرنا چاہیے۔ الائنس کا کہنا ہے کہ مکمل طور پر ریاست کا درجہ بحال ہونے کے بعد ہی اسمبلی الیکشن کرائے جانے چاہیے۔ اس مسئلے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے گوپکار الائنس نے جموں کشمیر کی دیگر سیاسی جماعتوں سے ربط کرنے کا فیصلہ لیا ہے۔ کوئی بھی الیکشن، خاص طور پر اسمبلی کے چناؤ میں اگر کریڈیبلٹی کا ایلیمنٹ نہ رہے، یا اس پروسیس کو اگر کریڈیبل بنانا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے جو ہوم منسٹر آف انڈیا نے پارلیمنٹ میں بھی کیا ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کو ریسٹور کیا جائے گا، اور وہ اسٹیٹ ہوڈ نہیں جو دہلی میں، بلکہ پورا اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، فوری قدم اٹھانا چاہیے۔ فاروق عبداللہ کی سربراہی میں اتوار کو گوپکار الائنس کے لیڈروں کی ایک بند دروازہ میٹنگ منعقد ہوئی تھی۔ گوپکار الائنس کے لیڈروں نے قریب 2 گھنٹے تک مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دہلی میں آل پارٹی میٹنگ میں 14 لیڈروں کی شرکت کے بعد گوپکار لیڈران کی یہ پہلی میٹنگ تھی۔ الائنس نے کہا ہے کہ وہ اپنے بنیادی ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ الائنس لیڈروں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ 5 اگست 2019 میں جموں کشمیر کے عوام پر غیر آئینی فیصلہ تھوپنے اور ناقابل قبول تبدیلیوں کو ختم کرانے کے لیے متحد ہو کر لڑتے رہیں گے۔ متفقہ طور پر ہماری یہ رائے ہے، پختہ رائے ہے، جو 5 اگست 2019 کو
जम्मू कश्मीर के आईनी और लेजिटिमेट राइट्स को पायमाल किया गया वो गैर कानूनी भी है और हमें मंजूर भी नहीं, और इस वजह से हम हर फोरम का इस्तेमाल कर लेंगे। अदालत आलिया में पहले ही हमारी तरफ से अर्जदाश्तें पड़ी हैं। हम सियासी सतह पर और हर फोरम का, हर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके अपनी आवाज, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। गुपकार अलायंस के एक ताज़ा बयान पर बीजेपी ने रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि ये लोग आए रोज बयाना तब्दील करते रहते हैं, जो अच्छा नहीं है। पार्टी का कहना है कि मरकज ने रियासत का दर्जा बहाल करने का जो वादा किया है वो पूरा होगा। कांग्रेस का कहना है कि कुल जमाती मीटिंग के बाद जमीनी सतह पर कुछ तब्दीलियां आने की उम्मीद थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अपनी पार्टी का कहना है कि रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए, मगर अलायंस को इसे असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के लिए एक शर्त नहीं बनाना चाहिए। ये इच्छा है, इसके लिए लड़ेंगे, लड़ना चाहिए। पहले से ही सब जुडिस मामला है और मुझे उम्मीद है कि लोगों का जिस प्रकार से समर्थन इसको मिलना चाहिए, वो कितना मिलेगा ये बात की बात है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते इस पर विचार करना चाहिए कि भारत सरकार ने जो कहा है वो ठीक कहा है। बाकी उनकी मांग है, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। भाषा समय समय पर चेंज होना भी ठीक बात नहीं। देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग से बहुत उम्मीदें जुड़ी हैं और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद जो है फॉलो अप एक्शंस होने चाहिए थे। उसमें ये तो बात सबने दोहराई और कहा कि भाई आपने वादा किया था कि स्टेट को रेस्टोर करेंगे, और उस पर कोई पुख्ता उन्होंने जो है वो आश्वासन नहीं दिया कि स्टेट इलेक्शन होने से पहले उसको स्टेट को इलेक्शन से जोड़ना, जब डिलिमिटेशन से जोड़ना गलत है। स्टेट हमारा अधिकार है, इसलिए स्टेट हुड को वापस करना चाहिए फौरी तौर पर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमेशा रीथिंक करते हैं। जैसे इन्होंने पहले कहा था हम डीडीसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर हिस्सा लिया, फिर कहा था अगर बैलेट निशान पे होगा तो नहीं लेंगे। मुझे लगता है इसमें भी इनको रिविजिट करना चाहिए कि लोगों की हक की ज़रूरत ये है कि यहाँ एक ब्यूरोक्रेसी के शिकंजे से ये सरकार निकले और लोगों के पास आए और लोग इसमें भागीदार बने। तो अगर उसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़ता है, मुझे लगता है हर सियासी जमात को उसको तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि स्टेटहुड तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कोर एजेंडा में है और हम इसके लिए संघर्ष करा भी है, किया, आगे भी करेंगे। हदबंदी कमीशन के जम्मू कश्मीर के पहले दौरे के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। कल से शुरू होने वाले कमीशन के दौरे से मुख्तलिफ हलकों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कई लोग और सियासतदान मुख्तलिफ तबकों को माकूल नुमाइंदगी देने की मांग कर रहे हैं। पेश समीर भट्ट की ये रिपोर्ट। लंबे इंतजार के बाद बिलाखिर जम्मू कश्मीर के लिए कायम हदबंदी कमीशन का 4 रोज़ा दौरा कल से शुरू होगा। दौरे के पहले 2 रोज कमीशन के मेंबरान कश्मीर में रहेंगे और बाद में जम्मू के लिए रवाना होंगे। इंतखाबी हलकों की अक्सर नौ तश्कील के सिलसिले में कमीशन के मेंबरान मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सरकारी नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। हालांकि कुछ हलके इस दौरे को लेकर ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। वो जम्मू को अलहदा रियासत का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। हमने उसका बहिष्कार किया है जी तमाम संगठनों ने, क्योंकि हमें ये मानना है कि डीलिमिटेशन जो आयोग आ रहा है उसके पिटारे के अंदर जम्मू को देने के लिए कुछ नहीं है। ये पहले से ही तय किया जा चुका है कि 7 सीटें ही बढ़ेंगी। हम कहते हैं कि जम्मू खिते की 50 से ज़्यादा सीटें बनती हैं। बेशतर समाजी और कम्युनिटी ग्रुप्स और सियासी जमातें इस दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। वो मानते हैं कि कश्मीर और जम्मू को यकसा पॉलिटिकल पावर दिलाने के लिए ये अमल बेहद अहम है। कश्मीरी पंडित, सिख और पीओके रेफ्यूजीज असेंबली में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कश्मीरी पंडितों के लिए 6 असेंबली सीट्स, 3 पार्लियामेंट सीट्स रिजर्व रखी जाए ताकि हमें भी नुमाइंदगी मिले। हमारा वोट डालने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। एक तो कश्मीरी पंडित को भी रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए कि वो उनके साथ बातचीत करें।
اور ہم بھی اپنی پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کے لیے ان کے سامنے اپنی مانگ رکھیں. کشمیری پنڈت کو پولیٹیکلی ایمپاور ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم پولیٹیکلی ایمپاور پہلے سے ہی ہوتے شاید 32 سال کے بعد بھی ہم گھر سے بے گھر نہیں ہوتے. نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کا ابھی اس بارے میں موقف واضح نہیں ہے کہ آیا وہ کمیشن سے ملاقات کریں گے یا پھر نہیں. ادھر گپکار الائنس کا کہنا ہے کہ تمام پارٹیاں انفرادی طور پر کمیشن سے ملنے یا نہ ملنے سے متعلق فیصلہ کرنے کی مجاز ہوں گی. کانگریس اپنی پارٹی، پیپلز کانفرنس، پینتھرز پارٹی اور بی جے پی نے پہلے ہی کمیشن سے ملاقات کرنے کی بات کہہ دی ہے. ان میں تاہم کچھ جماعتوں کی مانگ یہ بھی ہے کہ نئی حد بندی 2011 کی نہیں بلکہ 2021 کی مردم شماری کے مطابق ہی ہونی چاہیے. ایک پولیٹیکل برابری دونوں خطوں کی ہو اور ڈیلیمیٹیشن فری اینڈ فیئر مینر میں ہو. یہاں لوگوں کے کئی طرح کے وچار لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ کہیں جو رولنگ پارٹی ہے اس کی فیور نہ ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو، سب لوگوں کی رائے آن بورڈ لی جائے اور جو پریکٹیکلی ہے، جو پاپولیشن اور ایریا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ انصاف کرے. ڈیلیمیٹیشن ہونا چاہیے تھا آن دا بیسس آف سینسس آف 2021. آپ 10 سال پرانی سینسس یعنی 2011 کے بیسس پہ اگر ڈیلیمیٹیشن کرنا چاہتے ہیں یہ نہ جسٹس ہوگا کشمیر کے ساتھ، نہ جموں کے ساتھ، نہ لداخ کے ساتھ. حد بندی کمیشن کے دورے کے دوران کون کون سے گروپس ان سے ملیں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور کمیشن اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کس حد تک کامیاب ہوگا یہ دیکھنا بھی کافی دلچسپ ہوگا. نیوز 18 اردو کے لیے سمیر بھٹ کی رپورٹ. پینتھرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری حقیقت سنگھ نے مرکزی حکومت پر زور دیا کہ وہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کے لیے ایک مدت طے کر دے. انہوں نے کہا کہ انتخابات کی تاریخوں کا اعلان جلد سے جلد کیا جانا چاہیے. سنگھ نے بتایا کہ ان کی پارٹی کا وفد ڈیلیمیٹیشن کمیشن سے ملاقات کرے گا. انہوں نے دربار موو کی منسوخی کا خیر مقدم کیا. انڈیا نے یہ اعلان کیا ہے، ہم نے بتایا بھی ہے، یقین دہانی دی ہے تمام میٹنگوں میں پریس کے ذریعے کہ آپ یہ اس کو پریس کو ریاست جموں کشمیر کے درجے کو بحال کرنے جا رہے ہیں اسٹیٹ کو. لیکن انہوں نے ابھی تک اس کے لیے کوئی ٹائم کو وقت تعین نہیں کیا. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس میں کیا مشکل ہے. وہ 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 15 دن میں اس کو اگر بحال کرنا چاہتے ہیں تو اگر ان میں یہ ایمانداری ہے تو وہ جلد سے جلد اس کو بحال کریں. نمبر دوسرا کہ جلد از جلد یہاں پر الیکشن کروائے جائیں. الیکشن کے بغیر یہاں پر گورنر رول اور یہ اپنا LG رول یہاں کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے. جموں کشمیر بی جے پی کے صدر رویندر رینا، شرومنی اکالی دل کے قومی ترجمان منجندر سنگھ سرسا اور ایک شخص کے خلاف سری نگر کی عدالت میں مقدمہ درج کیا گیا. جموں کشمیر اسٹوڈنٹس یونین کے کارکن نے کشمیر میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کو زک پہنچانے کا ان پر الزام عائد کیا ہے. سکھ لڑکیوں کی مبینہ مذہبی تبدیلی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد رینا اور سرسا کے اقدامات کو قابل گرفت قرار دینے کی عدالت سے گزارش کی گئی. عدالت نے آج کی سماعت کے بعد پولیس سے اسٹیٹس رپورٹ مانگ لی ہے. عدالت نے SHO صدر کو حکم دیا کہ وہ ملزموں کے خلاف FIR درج نہ کرنے کی وجوہات پر 12 جولائی تک رپورٹ دیں. چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سری نگر نے SHO صدر سری نگر کو انتباہ دیا کہ اگر رپورٹ نہ دی گئی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی جائے گی. رینا اور سرسا نے سکھ لڑکیوں کا کیس سامنے آنے پر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر مبینہ طور ایک مخصوص طبقے کے خلاف نفرت انگیز اور جھوٹے بیانات پوسٹ کیے تھے. لگائی گئی ہے کہ 3 بندوں کے خلاف، جو اس میں منجندر سنگھ سرسا ہے جو اکالی دل کے ممبر ہے فرام نیو دہلی، سیکنڈ پرسن از امن سنگھ بالی اور تھرڈ از رویندر رینا جو BJP کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہے جموں اینڈ کشمیر کے. ان پہ یہ ایلیگیشن لگائی گئی ہے کہ دے ہیو کریٹڈ ویج بٹوین دا 2 پرٹیکولر کلاسز، دے ہیو انسائٹڈ دا وائلنس، دے ہیو کریٹڈ کیوس ان کشمیر. اس ریگارڈنگ جو کمپلینٹ فائل ہوئی ہے وہ آج لسٹڈ تھے سری نگر ڈسٹرکٹ کورٹ میں چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے، جنہوں نے ڈائریکشن کی ہے آفٹر پروسیڈنگ آف دیٹ کمپلینٹ ٹو دا SHO کنسرن کہ 12 جولائی سے پہلے اسٹیٹس رپورٹ فائل کریں
with regard to the said incident, with regard to the said offence. Otherwise, strict action shall be initiated against the SHO concerned. रोज कबल शहर श्रीनगर में एक सिख गर्ल के साथ, एक सिख महिला के साथ जो है एक वाक़ा पेश आया, जिस दौरान जो है यहाँ काफ़ी फिर आरोप और प्रति आरोप लग गए। काफ़ी सारी लीडरान हैं जिन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, काफ़ी सारे बयानबाजी की बयानात दिए, जिस वजह से जो है यहाँ के अमन अमान में जो है रखना डालने की कोशिश की जा रही थी। और यहाँ पे जो सिखों और कश्मीरी के दरमियान जो एक कम्युनल हारमोनी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। स्टूडेंट्स का एक बड़ा तबका हमारा पंजाब में पढ़ता है, महिलाओं का फ्लाक वहाँ पे जो है काम कर रहा है, पढ़ रहा है। सो उस चीज़ को लेके हमने जो है अकाली दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता मजिंदर सिंह सिरसा, जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना और जो अमन बाली एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की, जिस की बिना पे जो है पुलिस ने यहाँ पे एक जगह जो है एफआईआर करने से रिफ्यूज करते हैं। फिर हम श्रीनगर गए, श्रीनगर पे भी जो है कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स पुलिस की तरफ से नहीं था। श्रीनगर शहर में नौजवानों के एक ग्रुप ने प्रेस इंक्लेव में एहतजाज किया। श्रीनगर शहर में शराब की दुकानें चलाने और मंशियात के बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ ये एहतजाज किया गया। ये मुजाहिरीन अपने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे जिन पर कश्मीर में अमन की फ़ज़ा को ख़राब न करने के मुतालबात पर मबनी नारे दर्ज थे। एहतजाजियों का कहना था कि शराब और मंशियात नौजवानों की तरफ से खुदकुशियों की अहम वजह है। इस ज़मन में हसासियत का मुजाहरा करने की LG इंतज़ामिया से गुजारिश की गई है। ये जो वाइन शॉप जो हर किसी जगह खुल रही है या अभी है, वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की यूथ जो है वो ख़राब हो रही है, छोटे छोटे बच्चे ख़राब हो रहे हैं। शाम के टाइम बाहर नहीं निकल सकती है हमारी माएँ बहनें, कोई बाहर नहीं निकल सकती है, इसलिए कि बाहर ड्रग एडिक्ट होते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे एक है, हम अगर इससे भी प्रोटेस्ट करें कि इससे पहले वो शॉप बंद करे, न कि नया शॉप खोले। यहाँ पे नया शॉप और डलगेट में खुल गया। हम अपील करना चाहते हैं गवर्नमेंट से कि ऑलरेडी आप ओल्ड शॉप जो है वो बंद करें, कि नए शॉप खुलने चाहिए। आज यहाँ पे 10-20 लड़के खड़ा हो जाए, कल यहाँ पे 50 लड़के खड़ा हो जाएंगे। क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। दरबार मूव की कदीम रिवायत को मनसूख करने पर जम्मू कश्मीर में सियासी बहस शुरू हो गई है। बीजेपी को छोड़कर तमाम सियासी पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट ने कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के मकीनों से बातचीत की। डिसीजन लिया है कि दरबार मूव अब जो रस्म यहाँ पे चली आ रही थी उसको बंद कर दिया जाएगा और ऑफिसर्स यहाँ पे श्रीनगर में भी रहेंगे और जम्मू में भी रहेंगे राउंड द ईयर। कैसा फैसला मानते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि जब तक कश्मीर की अपनी गवर्नमेंट बनेगी किसी और को यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि ये मतलब अगर हम लोग अपनी सरकार सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग डिसाइड करेंगे इनडायरेक्टली, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अगर डेमोक्रेसी है तो स्टेट पे बिना गवर्नमेंट की कोई डिसीजन इम्पोज नहीं कर सकते। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत डिसीजन है। मार पाएगी हमें, होटल खाली हो गए पूरे, तो अब वो उनमें क्या करना है। टूरिस्ट तो है नहीं है। दरबार मूव पर हम जम्मू वाले थोड़ा करते थे, आज कुछ भी नहीं है, खाली हो गया। ये मानता हूँ कि दरबार मूव जो है गवर्नमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द गवर्नमेंट इट इज़ गुड। ये बोल रहे हैं 149 ईयर ट्रेडिशन जो है वो ख़त्म करने वाला है। ये जो वो जब ब्रदरहुड वो उसमें थोड़ा जो हमारा कल्चरल कॉन्फ्लुएंसेस बोलते हैं ना, उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। बाकी तो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है। 200 करोड़ का ये बोल रहे हैं कि इसमें इनको सेविंग हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड ये हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी बोथ फ्रॉम द कश्मीर एंड ख़ासकर मैं मानता हूँ जम्मू वालों को बहुत इसमें थोड़ा घाटा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से कश्मीरी फैमिली सारे वहाँ पे जाते हैं ऑलमोस्ट 3 या 4 महीने के लिए। अब बंद कर दिया, अब ना जम्मू जाएगा ना कश्मीर आएगा। जम्मू के अफसर जम्मू में ही रहेंगे, कश्मीर के अफसर कश्मीर में ही रहेंगे। मेरे हिसाब से ठीक है, या उधर का उधर रह गया, इधर का उधर रह गया, ठीक है। लोगों के मसले उससे हल होंगे। हाँ, हो जाएंगे सर। जिला पुंछ और राजौरी को कश्मीर से जोड़ने वाली कदीम मुगल रोड को सभी तरह की गाड़ियों और आम लोगों की आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है, जिसके बाद मुगल रोड से कश्मीर की तरफ जाने वाली गाड़ियों का तांता लग गया है। 7 महीनों के बाद सभी को सड़क के इस्तेमाल की इजाज़त मिलने पर लोगों में खुशी की लहर है। बर्फ़ की सफाई के बाद पुंछ से सिर्फ उन्हीं मरीजों को कश्मीर जाने की इजाज़त थी जिन्हें रेफ़र किया गया था।
फलों से लदे ट्रक और खाली टैंकर्स को सड़क इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। एलजी ने ट्वीट करके सड़क सभी के लिए खुलवाने की अहकामात जारी करने का ऐलान किया था। ये बहुत अच्छी बात है, ये खुशी की बात है। इंतजामिया की बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया है। बहुत मुश्किल थी जी, वो आपको पता भी है कि रामबन एरिया बहुत ख़राब है, वहाँ 3-3 दिन लगते हैं रास्ते में और पब्लिक बहुत परेशान होती है उस रास्ते से जाने में। और खास करके पेशेंट लोग का तो बहुत सारे, तो हम लोग ऐसे आधे रास्ते से वापस ले आते थे। के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं गवर्नमेंट इंतजामिया का, क्योंकि बहुत सफ़र कर रहे थे हम लोग पूंछ रजौरी के खास कर, और जितने भी पेशेंट थे पूरा मतलब 7 महीने से बहुत सफ़र कर रहे थे। आज बहुत खुशी की बात है, हम भी जा रहे हैं घूमने के लिए मुगल रोड से। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी का, और ख़ासकर जो हमारे यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका, कि जिन्होंने यहाँ के लोगों की मतलब जो मुश्किलात को जो मद्देनज़र रखते हुए, तो इसी कड़ी में हम आज मुगल रोड से जो जा रहे हैं तो हम बड़े शुक्रगुजार हैं। हमारी लोगों से यही गुजारिश है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी को देख के मुगल रोड पे ट्रैवल करें। LMDs के लिए बोथ साइड जो है वो ट्रैफिक को थ्रो किया गया है। HMVs जो है वो वन वे रहेगा, तो वो ट्रैफिक एडवाइजरी को देख के लोग ट्रैवल करें। मुगल रोड पर आम शहरियों को भी चलने की इजाज़त दे दी गई है। आम लोग और ट्रांसपोर्टर्स काफ़ी खुश हैं। मुसाफिरीन ने तहम बताया कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक ही सड़क पर आने की जाने की इजाज़त है। लोगों ने पूरा दिन चलने फिरने की इजाज़त देने की मांग की। मुगल रोड के असिस्टेंट इंजीनियर मंजूर अहमद ने आवाम से अपील की कि मुगल रोड तो क्लियर हो गई है, लेकिन लैंडस्लाइड आम तौर पर होती रहती है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो सफ़र शुरू करने से कबल मुगल रोड कंट्रोल रूम से रब्ता करें। बिल्कुल डिफरेंट था 5 अगस्त से लेकर, और अब तो ये रोड सिर्फ 1-2 महीने चल सकता है या 3 महीने, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से एक गुजारिश है कि वो 4 बजे तक ही अलाउ कर रहे हैं गाड़ियों को। थोड़ा लेट तक छोड़ते तो कारोबार में थोड़ी वसअत मिलती, क्योंकि मेरी लोगों से गुजारिश है कि जब भी वो इस रास्ते से ट्रैवल करें, बिफोर ट्रैवलिंग वो पहले मालूम करें कि रास्ता खुला है या नहीं है, वहाँ ट्रैफिक वाले लगे हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट से वो चीज़ें क्लियर करें। क्योंकि अगर सफ़र करेंगे तो बाद में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, उनको पता नहीं होगा कि आगे क्या है, इसलिए पहले वो चीज़ें कंफर्म करनी चाहिए। त्राल में मौजूद हज़रत अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी की ज़ियारत का काम पिछले 24 सालों से मुकम्मल नहीं किया गया है। इस पर अक़ीदतमंदों ने इंतज़ामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया है। लोगों के मुताबिक ये ज़ियारत 24 साल कबल आग की एक हौलनाक वारदात में शहीद हो गई थी। उस वक्त की हुकूमत ने ज़ियारत को 2 सालों में मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई थी, लेकिन 24 साल गुजरने के बाद भी ज़ियारत का काम मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने JKPCC और दीगर मुतल्लिका महकमों से ज़ियारत का बाकी काम जल्द मुकम्मल करने की अपील की है। कई सालों से ये काम रुका पड़ा है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो फौरन से पेशतर इस अधूरे काम को अपने हाथ में लेकर इस जियारतगाह को वो शान, वो जलाल बख्श दे जो इसके लिए जरूरी है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि फौरन से पेशतर ये काम अंजाम दिया जाए। इसमें फ्रंट पोर्शन जो अहम है वो अभी उन्होंने काम नहीं शुरू किया है। हमने बार बार इंतज़ामिया से भी, मैं भी वहाँ एक मेंबर था, मैंने भी उस वक्त बहुत कोशिश की थी। उन्होंने कहा था उस वक्त 2 महीने के अंदर अंदर ये फ्रंट पोर्शन हम मुकम्मल करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से आज भी 2 साल हो गए, तब से आज तक तो वहाँ काम शुरू नहीं हुआ है। शायर और अदीब MK रैना कश्मीरी ज़बान के फ़रोग़ के लिए अरसे से काम करते आ रहे हैं। कश्मीरी ज़बान के अनोखे, निराले और मखसूस गैर मामूली अल्फाज की एक डिक्शनरी उन्होंने तैयार की है। इसका 4था और जदीद एडिशन मंजर आम पर आ चुका है। MK रैना को कश्मीरी लिटरेचर नस्तालिक से देवनागरी में मुंतकिल करने का भी एजाज़ हासिल है। इस अजीम अदीब की तरफ से अपनी मादरी ज़बान की तरक्की के लिए काविशों को हर गोशे से सराहा जा रहा है। कश्मीरी से अंग्रेज़ी लुग़त में कश्मीरी के मुनफरद और आम बोलचाल से इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों, कहावतों, फ़िक्रों और जुमलों का तफसीलन अहाता किया गया है। लिसानी माहिर MK रैना तहरीरी और बोलचाल के अल्फाज की खूबसूरती को पेश करने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं।
कश्मीरी वोकैबुलरी पर काम करते करते हमारे सामने ऐसे अल्फाज भी आए जो या तो हमें मालूम ही न थे या अगर मालूम भी थे तो उनके सही सही मायने हमें मालूम न थे। 2018 तक कोई 1300 अल्फाज जमा हुए जो मैंने 2019 में एक किताब की सूरत में इंटरनेट पर डाल दिए। 2019 के बाद मैंने और काम करके इनकी तादाद 2300 तक बढ़ा दी जो अब इस डिक्शनरी में मौजूद हैं। असली लफ्ज़ रोमन, कश्मीरी, देवनागरी और नस्तलीक में है और उनके मायने अंग्रेज़ी में हैं। बच्चों को कश्मीरी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में या जम्मू यूनिवर्सिटी में जो भी लैंग्वेज के साथ मुंसलिक है या जो भी स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, इस किताब को रखें और इस किताब से बच्चों को फ़ायदा दिलाएं। मैं समझता हूँ कि हर एक घर में ये होनी चाहिए। जब हम शाम को बैठते हैं तो डिस्कशंस करते हैं, डिनर टेबल पर करते हैं, ये एक बेस्ट डिस्कशन है। अपनी लैंग्वेज पर बात करें, इसकी एनरिचमेंट पर बात करें, कॉमन वर्ड्स जो है, फ्रेजेस है, अगर घर में बुज़ुर्ग है तो वो भी आपको इसमें काफ़ी सपोर्ट करेंगे क्योंकि रादर इसको फर्दर एनरिच करेंगे। तो एक अच्छा काम किया है राना साहब ने, इसके लिए हम सब उनके बहुत ही शुक्रगुजार है। मैं समझता हूँ कि राना साहब ने जो बरसों से कश्मीरी ज़बान की खिदमत की है उसमें ये एक और नुमायाँ कदम है और इसके लिए मैं उनको तारीफ़ भी करता हूँ, उनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इस किताब की कीमत नहीं है, ये बड़ी बेशकीमत है और इत्तेफाक की बात ये देखिए कि इसका पहला लफ्ज़ जो है उसका वो लफ्ज़ है अबद जिसका मतलब है करोड़ों और आखिरी लफ्ज़ है जज़ जिसका मतलब है रुपए। तो वाकई करोड़ों रुपए की ये किताब है। वाहिद ऐसी डिक्शनरी मैंने देखी है कि जो एक नावल का काम करते हैं, जो एक सी बुक का काम करते हैं जिसको लोग जो एक स्टोरी बुक है उसकी तरह इसको पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ MK राना साहब को और जो इनकी ये कोशिश है बहुत शानदार कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि जो पढ़ने वाले हैं वो इससे महसूस भी होंगे और उससे फ़ायदा भी उठाएंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। गुलगाम टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साल अनीसा तारिक MBBS करने के साथ साथ फ़न ख़ताती और कैलीग्राफी में अपना नाम कमा रही हैं। अनीसा अपने फ़न से लोगों का दिल जीत रही है, वो इस फ़न से बाइज़्ज़त रोज़ी भी कमा रही है। पेश है टंगमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन होरा की ये रिपोर्ट। MBBS की तालिबा 20 साला अनीसा तारिक फ़न ख़त्ताती और कैलीग्राफी के मैदान में अपना लोहा खूब मनवा रही हैं। अनीसा तारिक ने कई बेहतरीन फन पारे तख्लीक किए हैं। उन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के कई दिलकश फन पारे बनाए हैं। अनीसा गांव में ही रहकर इज्जत और नाम कमाकर जम्मू कश्मीर का नाम खूब रोशन कर रही हैं। अनीसा अपनी फनकाराना सलाहियतों से आयात कुरान, अहादीस और दूसरे नसीहत आमूज तहरीरों की खत्ताती को एक नई और मुनफरिद जहत दे रही हैं। बगैर ब्रश के मुसव्विराना खत्ताती के इस हुनर को लाजवाल रुफतों से रोशनास कराना अनीसा तारिक का एक ऐसा कारनामा है जो बिला शुबा इन्हीं का इम्तियाज है। ऑनलाइन मैंने बहुत सारों को देखा ये कैलीग्राफी करते हुए, कैलीग्राफी प्लस अरबिक कैलीग्राफी, इंग्लिश एंड पर्शियन, these three things इन चीज़ों ने मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया। कोरोना थिंग, लॉकडाउन थिंग हैपेंड, I started it again. I saw some videos from YouTube and other online. I looked at other online artists and all. तो उनसे मैंने सीखा। अनीसा तारिक अपने फनपारों को दुनिया के सामने लाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बखूबी कर रही हैं। उन्हें इस काम से न सिर्फ अच्छी खासी कमाई हासिल हो रही है बल्कि उनके इस काम की पजीराई भी खूब हो रही है। लोग
ہمارا جو کام ہے وہ پسند کرتے ہیں, آرڈرس ملتے ہیں, ہمارا بھی لائک کائنڈ آف روزگار نہیں ہم کہیں گے بٹ لٹل بٹ آف ارننگ, جس کی وجہ سے ایک بوسٹ اپ ملتا ہے, ایک کانفیڈنس لیول بڑھ جاتی ہے کہ وی کین ڈو سم تھنگ. کچھ بھی اوکیزن ہو, آئی نیور بائی گفٹس فرام شاپس. آئی لائک دیز گفٹس لائک ایز آئی آلریڈی سیڈ دیز کنٹین لو اینڈ ایموشن. کی آرٹ جو ہے وہ پروموٹ بھی ہو گیا کائنڈ آف, تو مطلب مجھے بھی تھوڑے پروموشنز ملے. انیسہ طارق ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز میں MBBS کر رہی ہیں. ان کا ماننا ہے کہ ایران جا کر انہیں فن خطاطی میں مزید رہبری اور تقویت ملے گی. It's my first year only. So انشاءاللہ وہاں بھی ایران ایز یو نو وہاں پہ آرٹ کافی زیادہ ڈیولپڈ ہے, تو انشاءاللہ آئی ووڈ لرن a lot انشاءاللہ. تو وہاں پہ بھی سیکھنے کو بہت سارا ملے گا, یہاں پہ بھی سیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ آگے بھی بہت سیکھ. انیسہ کے فن پاروں کو دیکھ کر آنکھوں کو تراوت اور دل کو تسکین ملتی ہے. انیسہ کا کام نفیس اور دیدہ زیب ہے. ان کا ہر فن پارا دوسروں سے کسی نہ کسی اعتبار سے مختلف ہوتا ہی ہے. نیوز 18 اردو کی طرف سے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا جاتا ہے. نیوز 18 اردو کے لیے ٹرمرک سے منیر حسین حرہ کی رپورٹ. آزادی کے بعد پلوامہ کے ایک گاؤں کو پہلی مرتبہ سڑک رابطے سے جوڑا گیا ہے. قصبہ پلوامہ سے کچھ ہی دوری پر واقع تکیہ گاؤں آج کے اس جدید دور میں بھی سڑک جیسی بنیادی سہولت سے محروم تھا. گزشتہ سال اس گاؤں کو بھی PMGSY کے دائرے میں لایا گیا اور سڑک کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا. یہ گاؤں قصبہ پلوامہ سے چند ہی کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے, مگر اس کے باوجود سڑک نہ ہونے کے سبب یہاں سے کئی خاندان ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے. تکیہ گاؤں میں کسی کے پاس اپنا نجی ٹرانسپورٹ دستیاب نہیں ہے, تاہم اب پہلی بار سڑک رابطہ فراہم ہونے سے گاؤں میں تعمیر و ترقی کے کام شروع ہونے کی امید ہے. مشکلات گژھان صحیح مشکلات گژھان وۄنۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ سڑک گٔیِتھ اَسہِ تہِ گوٚو کَنٮ۪کٹ کُنہِ گامَس سۭتۍ سڑکہِ سۭتۍ تہٕ اَسہِ آیہِ واریاہ سہوٗلیت اَتہِ. گامَس اوس ترٛوومُت گورمٮ۪نٛٹَن یِتھَے کٔنۍ یہِ نہ حظ اوس نہٕ کُنہِ نقشَس منٛزٕے وۄنۍ پٮ۪ٹھ حظ سڑک درٛایہِ تَنہٕ پٮ۪ٹھ حظ آیہِ واریاہ سہوٗلیت اَسہِ. شارٹیسٹ ٹائم 1 سال میں اس کو ہم نے پورا پائے تکمیل تک پہنچا دیا ہے اور لاسٹ کنیکٹڈ ہیبیٹیشن کو ہم نے کنیکٹ کر لیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں میگڈمائزیشن بھی کمپلیٹ ہو گئی, برج کا ورک کمپلیٹ ہو گیا اور روڈ بالکل. رفیع آباد کے کنڈی بلاک میں منریگا اسکیم کے تحت مختلف ترقیاتی کام جاری ہیں, جس سے غریب طبقات کو نہ صرف روزگار مل رہا ہے بلکہ اس سے دیہی علاقوں میں بھی ترقی کا عمل شروع ہوا ہے. پنچایتی نمائندوں, DDCs اور BDCs ممبران نے نظر انداز کیے جاتے رہے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کی شروعات کرائی ہے. مقامی سرپنچ نے بتایا کہ حکومت نے گاؤں کی ترقی کے لیے خاطر خواہ رقم مہیا کرائی ہے. برسوں سے التوا کا شکار رہے کاموں کا آغاز کرا دیا گیا ہے. زرعی سرگرمیوں میں رکاوٹ بنی چیزوں کو ہٹایا جا رہا ہے. آب آسان یپر یور گژھان یتھ محلس سٲرسٕے آب یہ رحمت گورمنٹ طرف بیٚیہِ سرپنچ گٔے 15 ؤری گٔے اَسہِ یتھ حظ کانٛہہ پرٛژھنَس یور حظ. وٕنکٮ۪نس حظ کوٚر اَسہِ تھوڑا بہت 15 ؤری حظ آز یتھ گوٚو تھوڑا صفٲیی اد حظ لٲج اَسہِ کھولان. أسۍ حظ چھِ گورمنٹ شکر. یہ سبھی جاب کارڈ ہولڈرز ہیں یہاں پر کام کر رہے ہیں, تو ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہائر اتھارٹیز کا بھی اور تحصیلدار صاحب کا بھی, کیونکہ جو کول تھی یہ پہلے ختم تھی, اس پر دونوں طرف سے قبضہ تھا. نائب تحصیلدار کی قیادت میں یہاں ٹیم آئی تو انہوں نے اس کو انکریجمنٹ یہاں پر ختم کی, تو اب یہاں پر کام چل رہا ہے. بڈگام سویابگ میں HMT روڈ پر میکڈم بچھانے کا کام جاری ہے. مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ متعلقہ افسروں سے کئی بار گزارش کے باوجود PDD نے بیچ سڑک سے الیکٹرک پول نہیں ہٹائے. لوگوں کی درخواستوں پر کوئی مثبت جواب نہ دیے جانے کی شکایت کی گئی ہے. لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں انسانی بنیادوں پر تمام مسائل کا حل نکالیں. انہوں نے 2-3 سال پہلے اس کا سڑک کا جو ایکسپینشن ہے وہ کیا تھا,
तो उसका एक्सपेंशन का मतलब यही था कि सड़क बढ़ जाएगी, लेकिन जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो इन्होंने अब तक इन पिछले 3 सालों में से नहीं हटाए हैं। तो बार बार 2-3 बार मैं डीसी साहब से भी गुजारिश की, मैंने पीडीडी एक्शन से भी मैंने गुजारिश की, मतलब जो भी अफसर मौके पे थे मैंने उनसे गुजारिश की, लेकिन कोई सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है। हम लोग कोशिश करा कि लैंप पोस्ट हट जाए, ये थोड़ा साइड में किया जाए ताकि रास्ता बड़ा हो जाए, मगर अब जो मैगडम भी हो रहा है, मैगडम होने के बाद भी ये पोल ऐसे का वैसे, तो रास्ता खोलने का मतलब ही क्या हुआ? इतना पैसा खर्चा करने का क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट ने उसको टेंडर भी निकाला, जो पावर डेवलपमेंट लोग हैं, इंजीनियर है, उन्होंने सब कुछ किया उनके लिए, पैसे भी निकाला, लेकिन पोल ऐसे ही रहा, वो कुछ काम नहीं करता। इसलिए ज़िला बारामूला का उड़ी इलाका कुदरती खूबसूरती से मालामाल है। लाइन ऑफ कंट्रोल के मशरक़ में दरिया जहलम के किनारे वाक़ई ये इलाका कश्मीर की तकसीम से पहले उड़ी, रावलपिंडी और श्रीनगर के दरमियान एक पुल का काम करता था। सरहद पर अमन कायम होने के बाद मकामी सयाहों ने दहाइयों बाद फिर से उड़ी के सयाहती मकामात और पहाड़ों का रुख करना शुरू किया है। देखिए रिपोर्ट। हिंदो पाक के बीच जंग बंदी मुआहदे की पासदारी से सरहदी इलाकों के किसान अब पुरसुकून माहौल में खुशी खुशी ज़रई व बागबानी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। सरहदी इलाका उड़ी में भी मकामी सयाह तकरीबन 30 साल के बाद बिना खौफ के सैर की गरज से घरों से निकलने लगे हैं। सयाहों का कहना है कि उड़ी में बाबा फरीद, कोपरा पीक, डन्ना नामला, रुस्तम गली, वाटरफॉल नामला, सुम गली, बूसियां, दूधरन व दीगर कई अहम मकामात मौजूद हैं। लोगों का कहना है कि इन मकामात को सयाहती नक्शे पर लाने की जरूरत है। घरकोट में बाबा फरीद की दरगाह के लिए सरकार ने चंद दहाइयों कबल चंद शेड्स और बेंच बनाए थे जो अब खस्ता हाल हैं। लोगों का कहना है कि कई बार सियासतदानों, इंतजामिया और महकमे सयाहत की नोटिस में लाने के बावजूद उड़ी के सयाहती मकामात की जानिब कोई खास तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ पे सीज फायर होने के बाद काफ़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ इस नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर रहे हैं। हमारी मकामी इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे इस इलाके को, जैसे नामला का हमारा ये डना का इलाका है, हमारा आबशार है, इसको जो है अपग्रेड किया जाए। यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए शेड वगैरह बनाया जाए ताकि ये इसको इस नामला के डना को और आबशार को जो है एज ए टूरिस्ट स्पॉट जो है अपग्रेड किया जाए। अब वो हवा इतना भी अच्छी है, रहन सहन भी इस इलाके का अच्छा, इतने लोग भी अच्छे ने, कोई मसला नहीं कि बॉर्डर थी भी काफ़ी दूर इलाका है क्या खा बॉर्डर पर या कुछ चीज़ है, लेकिन इस इलाकेदार अज तक किसी दिखा नहीं। अस इस जगह पर गौर फिक्र किए अच्छा, ये जी जगह ये जो टूरिस्ट प्लेस है, अगर इस पर गौर फिक्र किए अच्छा तो शायद ही हमारे हिसाब नाल कश्मीर वैली में ऐसी कोई जगह हो सकेगी। उड़ी के लोगों का कहना है कि सयाहत को फरोग देने से यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। लोगों ने सरकार और महकमे सयाहत से उड़ी के तमाम सयाहती मकामात को सयाहों के लिए खोलने के साथ साथ यहाँ तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करने की मांग की है। माचीकरण हेलीपैड से तकरीबन पूरी उड़ी का नज़ारा अच्छी तरीके से होता है। शाम के टाइम तकरीबन सैर करने के लिए पड़ोसी गांव से, उड़ी से, इस्लामाबाद से, माचीकरण से, बांडी से, नामला से, बोनियार से काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। मुतबाना गुजारिश करते हैं कि हमारे हलके में की तरफ देखा जाए, हमारे हलके में एक ऐसी जगह जो हेलीपैड शेयर पिकेट के नाम से जानी जाती है, ये जम्मू कश्मीर की काफ़ी अच्छी जगहों में से एक जगह है। गवर्नर इंतज़ामिया ने और गवर्नमेंट ने अभी तक जो है हमारे इन इलाकों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। ख़ास तौर पे हमारे बोनियार का जो नाला है वो बिल्कुल जिस तरह लिदर नाला है पहलगाम का उसकी तरह है, और आज तक लेकिन इसको जो टूरिज़म पोटेंशियल को कभी भी फ़रोग नहीं दिया गया है। मैं गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करता हूँ और सेक्रेटरी टूरिज़म से कि वो एक बार एक टीम यहाँ भेजें और इन सेहत अफजा मकामात का जो है उनको टूरिज़म मैप पे लाएँ। उड़ी में जंगलात, सरसब्ज मैदान, ऊंचे पहाड़, आबशार और नदी नालों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पहुँचने वाले अफराद का कहना है कि उन्हें इन मकामात पर काफी पुरसुकून माहौल मिला है। उड़ी के ताजिर और दीगर लोग कहते हैं कि यहाँ सयाहत को फरोग देने से न सिर्फ इस इलाके के लोगों को फायदा होगा बल्कि पूरी यूटी के लोगों के लिए सुनहरे बाप का आगाज होगा। वो इस हवाले से मुताल्लिकीन से ठोस इक़दामात करने की अपील कर रहे हैं।
न्यूज 18 उर्दू के लिए सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। बेरवा के अरवाह में कुत्तों ने 1 दर्जन के करीब बच्चों और बुजुर्ग अफराद को जख्मी कर दिया है। इलाके में काफ़ी खौफ हरास का माहौल है। इन लोगों को बेरवा अस्पताल पहुंचाया गया। एक शदीद जख्मी बच्चे को SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया। उधर रावतपुरा टंगमर्ग में भी आवारा कुत्तों के हमले में 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। दोनों को अस्पताल में दाखिल कराया गया। बेरवा अस्पताल से दीगर लोगों को इलाज के बाद अपने घरों को भेजा गया। उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन वक्फे से करने को कहा गया है। अरवा के लोगों ने आवारा कुत्तों को काबू में करने की मांग की है। बच्चे द्राय रात गिंदने तो वूनो कोर यमन पे हमला ये बच्चे सह वारिया सीरियस तमिस बोजन किन तमिस लगान 2.5 लाख रपये सह गरीब सह कत अन 2.5 लाख रपये यम न डिपार्टमेंट कुन नजरे गसान बेस बुझ यमो त्रिमित हून और अनमित ये त्रिक याला पागल हून वो सोन इस्तदा यमन यम गम बंद कर यमन गोस रोक थाम लागन यमन हून बह पकान बह लकन बचन रश कर हून आव अम दिस मे थप सोन इल्तिजा यम गवर्नमेंटस यम डिपार्टमेंट अत पे रोक थाम। भदरवा में लेवेंडर किसानों में काफ़ी खुशी है। फूलों की कटाई और तेल निकालने के बाद किसानों को अपनी मेहनत का फल हासिल हो रहा है। लेवेंडर ऑयल बाजार में अच्छी कीमतों में फरोख्त होने से किसानों को काफ़ी फ़ायदा हासिल हो रहा है। जेके अरोमा ने किसानों के घरों तक पहुंचकर 10,000 रुपये फी लीटर तेल खरीदा है। जेके अरोमा के CEO का कहना है कि भदरवा में मकई की काश्त करने वाले किसानों की सालाना आमदनी 25,000 रुपये से कभी तजावज़ नहीं हो पाई है। उनका कहना है कि रवां साल काश्तकारों से 6 करोड़ रुपए मालियत का लेवेंडर ऑयल खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया है। उनका कहना है कि काश्तकार बहुत खुश है। लोगों को मक्की उसमें कुछ 5,000-6,000 की हम लोग बेचते थे, लेकिन आज लगभग मेरे को 25 लीटर तेल निकला है, जिसमें किसी कीमत 2,40,50,000 के करीब है। तो खुश तो होंगे ही। ऐसे ही सभी लोग जो है इसमें आए हैं, बहुत खुशी से आए हुए हैं। बहुत फ़ायदा हुआ इससे। साल में लीटर तेल जो निकला वो कोई 18 लीटर, लगभग कोई 180 लाख हज़ार के करीब लाख, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ सर। तक 300 किलो ऑयल लिया और 300 किलो अभी पेंडिंग है फार्मर्स के, वो भी कल या परसों तक 2-3 दिन में आ रहे हैं। तो 600 किलो ऑयल इस साल हमारा प्रोड्यूस हो गया। जो हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम 20 किलो ऑयल बन रहा था यहाँ पे। आज 600 किलो करीब 60 या 70 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है हमारे फार्मर्स को। ऑन अकाउंट इनकी पेमेंट जा रही है, बिल्कुल ऑन टाइम माल बेचते ही इनको पेमेंट मिल रही है। ज़िला गांदरबल में कई बेरोजगार नौजवान और देही इलाकों के मकीन शहद की मक्खियों की अफजाइश का काम शुरू कर रहे हैं। महकमे ज़राअत की काविशों का ये नतीजा बरामद हुआ कि मुनाफा बख्श कारोबार के मुख्तलिफ पहलुओं से लोगों को रोशनास कराने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। इस अहम ज़रूरी सरगर्मी की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने बताया कि गांदरबल के काश्तकार शहद की मक्खियों की अफजाइश अरसे से करते आ रहे हैं। इससे उन्हें आमदनी के अलावा तग़ज़िया मिल रहा है। करान सोरे तजारत पनुन एपिकल्चरस पे माछ गंद रचनस पे ये जन पनुन माछ बह डेवलप करान डिस्ट्रिक्ट गांदरबल से मज मे 110 मे कॉलोनी औसत कड़ मे वन गई अत मे सर कुन गई 5 कह गई 14 पे तो औसत कड़ मे पत औसत 10 किलो द्राय किस कॉलोनी माछ। नौजवान हम अपने हैं, इनको कैसे हम इसकी तरफ रागिब करें ताकि वो अपना और अपने कुंबे और अपने जो और भी उनके साथी हैं उनकी माशी हालत कैसे वो बढ़ा दें। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद हम उनकी कैसी हेल्प कर सकते हैं, माहिराना मशवरा देते हैं और या कुछ इंसेंटिव दे देंगे ताकि वो इस पेशे के साथ अपना एक रिश्ता कायम करें। वोवियों शोपियां में मुकीम खानाबदोशों ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी इंतज़ामिया ने उन्हें वेटरनरी और हेल्थ सेंटर की सहूलत फराहम नहीं की है। इन लोगों ने बताया कि जारिया साल उनके मवेशियों में मुंह नाक की बीमारियां फैल रही हैं। इसके नतीजे में वो अपने कई मवेशी गंवा चुके हैं। अपने रिहायशी इलाकों में इन लोगों ने सेहत आम्मा की सहूलतें दस्तियाब कराने का मुतालबा किया है। लोगों ने कहा कि हुकूमत उन्हें उनका बुनियादी हक भी फराहम नहीं कर रही है। इनकी ज़िंदगियां मवेशियों पर ही मुनहसर होती हैं। मवेशी ही उनकी रोज़मर्रा ज़रूरतें पूरी करने का ज़रिया होते हैं। हमारे
हमारे माल मवेशी है वो बीमार हो जाते हैं और उनके वो आधे यहीं दम तोड़ जाते हैं। और इंसान भी है, उनको जब बीमार हो जाते हैं उनको 4 पहियों पे उठा के यहाँ से नीचे लेने में बहुत टाइम लगती है। आधे ऐसे भी है जिनका रोग रास्ते में निकल जाता है, उनको हम अस्पताल नहीं पहुँचा सकते। इसलिए हमने सुना है कि हमारा नए DC साहब आए हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें यहाँ पे एक इंसानों का डॉक्टर और एक माल मवेशी के लिए डॉक्टर भेजें। इधर कोई डॉक्टर नहीं और कोई इंसानों का डॉक्टर नहीं, बहुत मुसीबत में। जो माल बीमार होता है यहाँ से किलर ले जाते हैं, वो मर जाता है रास्ते में। और जनाबली आदमी कोई बीमार होता है उसको 25 पर उठा कर ले जाते हैं। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने ज़ंस्कार सब डिवीज़न का दौरा किया। MP लद्दाख जमयांग शेरिंग नामग्याल के हमरा उन्होंने शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया और सीनियर साइंसदान और इंचार्ज हेड डॉक्टर शाहनवाज से मुलाकात की। उन्होंने हिमालयाई खित्ते में नामियाती तरीक़ों से की जाने वाली काश्त और ज़ंस्कार के नाहमवार खित्ते में बेहतर ज़रई तरीक़ों के लिए फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के क़याम पर जोर दिया। उन्होंने इलाकाई यॉक रिसर्च सेंटर के क़याम के सिलसिले में इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई। फसल बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। उनका कहना है कि ज़ंस्कार को मुस्तक़बिल करीब में नामियाती जोन करार देने का ऐलान किया जाएगा। हम ऑर्गेनिक है, लद्दाख में ज़्यादातर विलेज ऑर्गेनिक है, लेकिन जब तक हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उस प्रोडक्ट का आज के मार्केट में वैल्यू नहीं होता है। इसलिए सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बंदा जितने भी पढ़े लिखे हो, नौकरी लेने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए ना, उसी तरह हमारा प्रोडक्ट जितने भी अच्छे हो, मार्केटिंग करने के लिए हमें उसका सर्टिफिकेशन चाहिए। उसी तरह हमने सरकार से मांग किया कि लद्दाख में याक का पालन बहुत बढ़िया होता है। याक और डीमो, फीमेल मेल, अभी लोग जो है फीमेल मेल दोनों को याक ही बोल देते हैं सर, एक्चुअली याक जो है मेल होता है, उसके फीमेल को डीमो बोलते हैं। तो याक डीमो के पालन के लिए हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि लद्दाख में एक याक का रिसर्च रीजनल सेंटर यहाँ पे स्थापित करे। वो भी माननीय मंत्री जी ने कल लेवी भी कहा, अब यहाँ भी औपचारिक रूप से घोषित करेंगे, अनाउंस करेंगे। उसी तरह सरकार के पास बहुत सारे स्कीम लद्दाख के लिए अभी करने वाले हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके मुज़ल के लोगों ने DC ऑफिस कुपवाड़ा के सामने एहतजाज किया। वो इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि उन्हें भर्ती में शामिल होने के लिए उन्हें दरकार ज़रूरी सर्टिफिकेट मुहैया नहीं कराई जा रही है। उनका कहना है कि वो DC ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं मगर कुछ नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें एक दिन कुपवाड़ा में रुकने के लिए हज़ारों रुपए रिहाइश व दीगर ज़रूरियात पर खर्च होते हैं। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने मामले का नोटिस लेते हुए अफसरान को हिदायत दी कि उन्हें बिना ताख़ीर के सर्टिफिकेट फराहम किए जाए। बानीपुरा में बोनाकोट ब्लॉक के DDC मेंबर अब्दुल गनी वानी ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अब्दुल गनी वानी PDP के साथ वाबस्ता थे। उन्होंने अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। उस्मान मजीद ने पार्टी में उनकी शमूलियत को सच्ची सियासत की जीत करार दिया। अखनूर में जोड़ियां हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने अपनी बेहतर कारकर्दगी से इलाके का नाम रोशन किया है। स्कूल में एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद करते हुए 12वीं क्लास में टॉप करने वाले तालिबात को एजाज़ पेश किया गया। इन लड़कियों ने बताया कि कोविड के दौर में भी उनके टीचरों ने पढ़ाई में उनकी भरपूर मदद की। टीचरों ने बताया कि इस स्कूल का नतीजा 68% रहा है। बच्चों की मेहनत पर टीचरों ने मसरत ज़ाहिर की। वालों ने, टीचर्स ने बहुत सहयोग दिया, जिसके कारण हमारी पढ़ाई बीच में रुकी नहीं। ऑनलाइन क्लासेस भी चलती रही। कोई डाउट था वो भी हमने टीचर्स से क्लियर किया। टीचर्स ने हमारी पूरी हेल्प की और फिर इसी वजह से आज मैं ये मार्क्स सिक्योर कर पाई हूँ। यहाँ पे EVS के टीचर हैं, काफ़ी ज़्यादा टीचर हैं जिन्होंने इनको जूम पे इनको क्लासें ली हैं, ऑनलाइन बिल्कुल मोड पे क्लासें ली हैं और इन्होंने मेहनत। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ने हमें रिस्पांस दिया और बच्चे हर टाइम हमारा साथ देते रहे स्कूल में। जब भी हमें इनको बोला इन्होंने प्रॉपर तरीके से हमारा साथ दिया और आज ये सक्सेसफुल हुए। कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।